Assalamu alaikum everyone, hope you're doing well. So in today's lesson, I'll explain you one complete paper, and this video is for AS Economics Paper 1, and the exam series is November 2023 and variant is 1-1. So let's move on to the question paper. And furthermore, if you want to purchase my books, you can go into the description and see a link there. All of my study material is given there. So you can order online, and those books will really help you a lot in writing essays and solving MCQs as well. Okay, so let's have a look on the question paper. So this is the question paper you can see on the screen right now. And I'll explain this complete exam paper. This is from November 2023 exam series and variant is 1-1. So the first question is, the scheme is you can stop the video, read the question carefully, and then listen to the logic. Okay, so the question is, what will help solve the basic economic problem? Basic economic problem refers to the scarcity of resources when resources are limited and wants are unlimited. So which of the following can solve the basic economic problem? Scarcity किससे कम हो सकती है? The control of market system. देखें जब market system होता है तो free market system को basically market system बोलते हैं. This is a system where private individuals and companies make decisions. तो private individuals and companies तो ज़्यादा profit motive पे focus कर रही होती हैं, तो वो scarcity को खत्म करने के लिए हमारे लिए हेल्प नहीं कर सकती. सो ऑप्शन ए क्रॉस कर देते हैं. द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज. डेफिनेटली अगर आप रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करते हैं तो किसी हद तक आप स्केर्सिटी यानी बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. द प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्दी एनवायरनमेंट, उससे बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि रिसोर्सेज जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं वो हमेशा लिमिटेड ही होते हैं. उनको प्रिजर्व करने से भी आपके पास कोई रिसोर्सेज बढ़ नहीं जाएंगे, उतने ही रहेंगे. ओके, सो द एलिमिनेशन ऑफ हंगर, ये भी स्केर्सिटी का पार्ट नहीं होता. स्केर्सिटी ओवरऑल रिसोर्सेज के हवाले से होती है कि व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स. ओके, सो नाउ मूविंग टू दिस क्वेश्चन. Question number 2. Again, stop the video, read the question carefully, and then listen to the logic. Question says कि country Z operates with a production possibility को PPC. Currently output is at combination 1. So this is the initial combination where production is taking place for X good equal to X1 and for Y good it is Y1. Which movement has zero opportunity cost in terms of goods produced? Opportunity cost is the cost of next best alternative foregone. जब हम कोई भी चीज फॉरगो करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो इनमें से बाकी जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, ऑल ऑफ देम विल लीड टू गेटिंग समथिंग एंड सेक्रीफाइसिंग समथिंग एल्स, बट देयर इज ओनली वन ऑप्शन दैट causes no opportunity cost. तो production of y जो है that takes place equal to y2 and production of x is x2. अब कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ा, दोनों गुड्स की प्रोडक्शन हमारी ज्यादा होगी. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें कब फेस करना पड़ती है? जब हमारी प्रोडक्शन एक चीज की बढ़ाने से दूसरी कम हो जाए. सो ऑप्शन बी वैसे इसका आंसर होगा, लेकिन बाकी ऑप्शंस में मैं थोड़ी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बाकी क्यों नहीं ऑप्शन हो सकती. इस केस में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं थी, जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, बट इन ऑल अदर केसेस देयर विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जैसे हम 1 से 2 पे जाएं तो वाई गुड की प्रोडक्शन तो हमारे पास बढ़ गई है y1 से y2 तक, लेकिन हमारे पास एक्स गुड की प्रोडक्शन कम होगी. जब भी हम एक चीज इंक्रीज करें और दूसरी कम हो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करना पड़ती है. सेम इज द केस विद 4 पे हमारे पास एक्स की प्रोडक्शन तो बढ़ गई है, लेकिन अब हमारे पास वाई की प्रोडक्शन कम होगी. जब भी आप किसी चीज की प्रोडक्शन कम होती है तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करना पड़ती है, तो इसलिए बी इज द बेस्ट ऑप्शन. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3. A country's healthcare is funded by taxation but can be used free of charge by patients. ठीक है, so which type of good is healthcare in this country?
देखिए ये प्राइवेट गुड का फीचर होता है जब आप किसी खास किस्म के लोगों के लिए कोई सर्विस ओपन करते हैं तो ये एक प्राइवेट गुड होती है। मेनली बच्चों को लगता है कि टैक्स से फंड हो रही है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होगी, तो ये पब्लिक गुड है। सो ऐसा नहीं है, कोई भी गुड जो राइवल हो, एक्सक्लूडेबल हो, दैट इज बेसिकली प्राइवेट गुड। तो ये एक्सक्लूडेबल होगी ओनली लाइक पेशेंट्स कैन यूज दैट सर्टेन सर्विस, तो इसलिए प्राइवेट गुड होगी। डीमेरिट गुड क्यों नहीं होगी? डीमेरिट गुड इसलिए नहीं होगी क्योंकि इससे तो थर्ड पार्टी को बेनिफिट होता है। जब जब लोग हेल्दी होंगे तो डिजीजेस स्प्रेड होने का चांस नहीं होता। फ्री गुड्स इसलिए नहीं होंगी क्योंकि फ्री गुड्स तो गॉड गिफ्टेड होती हैं, दे आर नॉट बेसिकली, दे डोंट हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और लेकिन ये तो ज़ाहिर कुछ लोगों के लिए सर्विस अवेलेबल है, और ये गॉड गिफ्टेड भी नहीं है, मैन मेड या ह्यूमन रिसोर्स से बनी। जो लाइक हेल्थ केयर है वो ज़ाहिर ह्यूमंस आर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, सो ये भी नहीं हो सकता। पब्लिक गुड का मैंने शुरू में बता दिया था कि ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल नहीं है, हर किसी के लिए ओपन नहीं, सिर्फ पेशेंट्स के लिए। Okay, so now moving to question number 4, and question number 4 says what is least likely। इस चीज को वो बोल्ड कर देता है, least, most, not, इस तरह के वर्ड्स में, तो इस पे फोकस करना होता है काफी। Okay, so what is least likely to increase as a result of a transition as a result of transition from a planned economy to a free market economy। planned economy basically गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर होती है और फ्री मार्केट प्राइवेट सेक्टर के अंदर होती है। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि कौन सी चीज़ है अगर ट्रांजिशन हो, लाइक प्लान्ड इकोनॉमी से फ्री मार्केट की तरफ जाए, तो कौन सी चीज़ है जो लीस्ट लाइकली है, लीस्ट लाइकली टू इंक्रीज है। सो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये तो लाइक लीस्ट लाइकली नहीं है, ये तो इंक्रीज करेंगी करेंगी, मोस्ट लाइकली है, तो इसलिए हम इसको क्रॉस कर देते हैं क्योंकि फ्री मार्केट यानी प्राइवेट सेक्टर प्राइसेस ज़्यादा चार्ज करता है। प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्सेज ये भी नहीं हो सकता, ये भी मोस्ट लाइकली है क्योंकि जब फ्री मार्केट में चले जाएंगे तो रिसोर्सेज होंगे ही प्राइवेट लोगों के पास। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जरूरी नहीं हो, नहीं है हो, ये भी लाइक मतलब मोस्ट लाइकली हो सकता है, लीस्ट लाइकली नहीं हो सकता क्योंकि फ्री मार्केट ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होता है। अब जब टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आपको फेस करना पड़ सकती है। लास्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगी एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। अगर हम देखें तो सी, प्रोविजन ऑफ मेरिट गुड्स। देखिए प्राइवेट सेक्टर मेरिट गुड्स कम प्रोवाइड करता है। मेरिट गुड्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो कंज्यूमर्स के साथ साथ थर्ड पार्टी को भी फायदा देती हैं, तो ऐसे गुड्स जो है ज़ाहिर प्राइवेट सेक्टर जनरली नहीं बनाता जो हर कोई फायदा ले सके। Question number 5 says which statement correctly describes the area of producer surplus on the demand and supply diagram। देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे और सप्लाई कर्व से ऊपर का जो एरिया होता है कंज्यूमर सरप्लस होता है। इट इज अबव सप्लाई कर्व एंड बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस लाइन। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। लेकिन जस्ट फॉर रिव्यू एक दफा देख लें, सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस हम कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास सप्लाई कर्व है, वाई पे हमारे पास प्राइस है, एक्स पे हमारे पास क्वांटिटी, एंड दिस इज डिमांड कर्व। और इक्विलिब्रियम हमारा डिमांड एंड सप्लाई के इंटरसेक्शन पे बनता है, एंड दिस इज एक्चुअल इक्विलिब्रियम प्राइस। और इक्विलिब्रियम जो कंज्यूमर प्रोड्यूसर चार्ज करना चाहता था दैट वाज प्राइस वाई। प्राइस वाई और ए के दरमियान में ये जो एरिया होता है ये प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। तो ये एरिया कौन सा है? प्राइस लाइन से नीचे है, सप्लाई कर्व से ऊपर है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द डायग्राम शोज a demand curve for pineapples। Okay, what happens to the value of price elasticity of demand when there is movement from point X to point Y, and what describes the value of PED at point Y। देखिए ज़हन में रखें जब हम ऐसे आगे राइटवर्ड मूव करते जाते हैं तो PED की वैल्यू कम होती जाती है। ये जो पॉइंट है X पॉइंट, यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी यानी इलास्टिक होगी, और पॉइंट वाई पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेसर देन 1 यानी इन इलास्टिक होगी। तो इस पॉइंट पे वाई पे तो क्लियरली हमें नजर आ गया इन इलास्टिक। अगर ग्रेटर देन 1 से लेस देन 1 की तरफ मूव करें तो ज़ाहिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो हम कहेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल डिक्रीज एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन 1 और इन इलास्टिक एट पॉइंट वाई। तरीकाकार ये होता है कि ये जो मिडिल पॉइंट होता है यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होती है, यूनिटरी होती है। इससे लेफ्ट साइड पे यहाँ ऊपर जाएंगे तो इलास्टिक हो जाती है और नीचे आते हैं तो इन इलास्टिक होती है। इसके लिए फिर ऑप्शन क्या होगी? ऑप्शन हो जाएगी हमारे पास आंसर के तौर पे कि
Effect on the value of price elasticity of demand. Price elasticity of demand will fall obviously. So option A और B में से कुछ हो सकते हैं. Price value of PED at Y हमने consider किया था कि it would be inelastic. So option B will be the correct answer. Now moving to question number 7. So question number 7 is, in a free market there is a surplus of a good. Which change would cause the market to come to an equilibrium? देखिए सरप्लस होता है जब इक्विलिब्रियम से प्राइस ऊपर चली जाए, जैसे मिनिमम प्राइस होती है. सरप्लस का मतलब है सप्लाई विल बी ग्रेटर देन डिमांड. अ डिक्रीज इन डिमांड, फॉल इन प्राइस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. कैसे? जैसे आप इस ग्राफ को देख लें, ये हमारे पास लाइक डिमांड है, ये हमारे पास सप्लाई है. डिमांड एंड सप्लाई जहाँ मीट करें ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है. इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास पी और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू है. लेकिन वो ये कह रहा है कि ऑलरेडी मार्केट में सरप्लस एग्जिस्ट कर रहे हैं. जब सरप्लस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी प्राइस यहाँ की होगी. इसको हम मिनिमम प्राइस भी कहते हैं, जो P1 है. दिस इज ऑल्सो नोन एज मिनिमम प्राइस, जो गवर्नमेंट फिक्स करती है. तो इस केस में ए से बी तक ये जो गैप राइज हुआ है इसको हम सरप्लस का नाम देते हैं. सो सरप्लस एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है प्राइस इक्विलिब्रियम से ऑलरेडी ऊपर है. अगर इसको वापस इक्विलिब्रियम पे लाना है तो फिर प्राइस को क्या करना होगा, P1 से P तक नीचे लाना होगा. सो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा. लेकिन इसके अलावा और क्या आंसर्स हो सकते हैं एक्सपेक्टेड फ्यूचर में, आपको पता होना चाहिए. इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए अगर क्वांटिटी डिमांड देखें तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड क्यू दी है. एग्जामिनर ये भी कह सकता था कि क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज करना होगा या एक्सटेंड करना होगा, या फिर वो ये भी कह सकता है कि क्वांटिटी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा या डिक्रीज करना होगा इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचने के लिए. यानी सप्लाई यहाँ से बी से ई तक नीचे लानी होगी या क्यू एस से क्यू की तरफ काम करनी होगी, और डिमांड को ए से ई तक इंक्रीज करना या एक्सटेंड करना होगा, और क्वांटिटी डिमांड को क्यू डी से क्यू तक इंक्रीज करना होगा. सो इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 8 जो है, दैट इज द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन गुड पी एंड क्यू इज -0.4. देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब नेगेटिव हो तो इसका मतलब होता है ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है. कॉम्प्लीमेंट्स कैसी चीजें होती हैं जो एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं. एग्जाम्पल क्या हो सकती है, जैसे कार एंड पेट्रोल की एग्जाम्पल ले सकते हैं. ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट्स है. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर पी एंड आर इज +0.6. तो ऐसी दो चीजें जिनकी क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव हो इन्हें हम सब्स्टिट्यूट्स का नाम देते हैं. Which combination of goods is most likely to be represented by this information? इससे हमें क्या पता चल रहा है? देखिए हमने ये सीखा कि P and R सब्स्टिट्यूट्स हैं. P and R को अगर अब हम सबसे पहले देख लें तो कौन सी चीजें जो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट्स होंगे. सो ऑप्शन सी में देखें, स्ट्रॉबेरीज एंड रेस्पबेरीज ये एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट होते हैं, दोनों फ्रूट हैं. एंड क्रीम इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड टू गुड क्यू, यानी जो है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड टू पी. क्रीम और स्ट्रॉबेरी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, और पी और आर एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं. तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा. बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है जो इन डेफिनेशंस को मैच करे. सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जो एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव हैं, जैसे कोक एंड पेप्सी हो गया. कॉम्प्लीमेंट्स होती हैं जो एक दूसरे को जॉइंटली डिमांडेड होते हैं, एक परचेज किया तो दूसरा भी करना पड़ता है, जैसे कार एंड पेट्रोल होगी. ठीक है, सो ये ध्यान में रखें. सो क्वेश्चन नंबर 9 says the supply S of a product is determined by the equation S is equal to 10 plus 10p, where P is the price of the product in dollars and what is the product's price elasticity of supply when price increases from 1 to 2. जी देखिए, आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं लगा देता हूँ, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ओवर चेंज इन प्राइस इनटू P1 ओवर Q1. P1 से मुराद है कि इनिशियल प्राइस, Q1 से मुराद होता है इनिशियल क्वांटिटी, और डेल्टा QS मीन चेंज मतलब डिफरेंस, एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी तक जो डिफरेंस होता है. अब मुझे प्राइस और क्वांटिटीज की वैल्यूज चाहिए, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई. प्राइस तो उसने बता दिया $1 से $2 तक इंक्रीज हुई है. क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? देखिए जब प्राइस $1 है तो प्राइस की वैल्यू पी में पुट कर दें. जी, पी के अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे तो सप्लाई हमारे पास आ जाएगी. सो प्राइस सप्लाई इज इक्वल टू 10 प्लस 10 इंटू पी की जगह 1 पुट कर दें. सो 10 प्लस 10 के ऐड करें तो 20 आ जाएगा. सो प्राइस 1 है तो क्वांटिटी 20 है.
ओके, सो जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी 20 है, और अब अगर प्राइस 2 हो जाती है तो क्वांटिटी कितनी होगी? देखिए 10 प्लस 10 इंटू 2 कर दें, अब आपके पास सप्लाई आ जाएगी 10 प्लस 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। तो ये हमारे पास आ जाएगी 30। तो यहाँ पे मैं 30 पुट कर देता हूँ। अब मेरे पास प्राइस और क्वांटिटी की वैल्यूज आ गई। जस्ट मैं इस फॉर्मूला में पी एस की फॉर्मूला में पुट कर देता हूँ। चेंज इन क्वांटिटी कितना है? 20 से 30 तक चेंज कितना है? 10 का चेंज है। तो मैं ये 10 यहाँ पे लेके लिख देता हूँ। और चेंज इन प्राइस कितना है? 1 से 2 तक 1 का चेंज है। डिफरेंस देखेंगे तो 1 है। P1 हमारे पास क्या होती है? जो शुरू की प्राइस होती है, ये जो $1 है, ये शुरू की प्राइस यानी P1 है। और Q1 क्या होती है? शुरू की क्वांटिटी कितनी है? शुरू की क्वांटिटी 20, तो 20 इधर पुट कर दिया। तो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा 10 इंटू 1 करेंगे 10, 20 इंटू 1 करेंगे 20। सो 10 ओवर 20 करेंगे 1 ओवर 2, 0.5 के इक्वल आ जाता है। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू हमारे पास 0.5 यानी ए ऑप्शन आ जाएगी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 says कि in the diagram uh, in the diagram the supply curve shows the number of spaces in car park, and the demand curve shows the demand for spaces on 4 different days, D1, 2, 3, and 4. Okay. So what the owner wishes to charge a parking fee on each of these days to allocate the spaces according to the market mechanism. मार्केट मैकेनिज्म बेसिकली होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी को कहते हैं, प्राइवेट इकोनॉमी को। सो प्राइवेट इकोनॉमी डिसीजन मेकिंग करती है डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे। तो इसमें क्या होगा? डिमांड जब D1 है तो वो इक्विलिब्रियम यहाँ सेट कर लेंगे, प्राइस ये चार्ज कर देंगे। जब डिमांड D2 हो जाएगी, इक्विलिब्रियम यहाँ सेट हो जाएगा, प्राइस P2 चार्ज हो जाएगी। जब इक्विलिब्रियम डिमांड और बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस और बढ़ जाएगी। जब डिमांड और बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस और बढ़ जाएगी। सो यहाँ पे वो क्या करेंगे? फिर प्राइस P और P4 के बीच में वेरी करते रहेंगे एज पर द डिमांड। सो इसके लिए देखते हैं क्या आंसर होना चाहिए। आंसर अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। विच प्राइसिंग पॉलिसी शुड द ओनर यूज? जी, क्या करना चाहिए उसे? सेट अ फिक्स्ड प्राइस एट P, ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं कर सकते। Set fixed price P4, vary prices between P2 and P3, vary prices between P1 and P4। जैसे जैसे डिमांड चेंज होती रहे उसी तरह आप चेंज करते रहे। P1 और P4 के बीच में कहीं पे भी प्राइस आप चार्ज कर सकते हैं एज पर द डिमांड। तो ये जो पूरी रेंज है P1 से P4 तक, जहाँ पे डिमांड है, डिमांड जब ज़्यादा है तो यहाँ पे चार्ज कर लेंगे, जब डिमांड कम है तो यहाँ पे चार्ज कर लेंगे। Okay, so now moving to the next questions, and the next question is the table shows the demand schedule for textbooks. Okay, prices and quantity demand given है. What can be concluded from this table? Again, आप इस वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं और फिर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। अच्छा देखिए, पहली जो दो ऑप्शंस हैं उसमें कह रहे हैं प्रॉफिट वुड बी मैक्सिमाइज्ड एट प्राइस 30। तो प्रॉफिट का यहाँ से प्राइस और क्वांटिटी डिमांड से प्रॉफिट का पता नहीं चल सकता। प्रॉफिट के लिए हमें कॉस्ट भी पता होनी चाहिए, तो कॉस्ट तो यहाँ गिवन ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए और बी तो वैसे निकालना है प्रॉफिट की वजह से। रेवेन्यू वुड इंक्रीज इफ प्राइस वॉज डिक्रीज फ्रॉम 40 टू 30। इसको हम देख लेते हैं। रेवेन्यू वुड बी मैक्सिमाइज्ड एट अ प्राइस ऑफ $40, इसको भी हम देख लेते हैं। सो आते हैं पहले ऑप्शन सी को वेरीफाई कर लेते हैं। वो कह रहे हैं रेवेन्यू वुड इंक्रीज इफ द प्राइस वाज डिक्रीज फ्रॉम 40 टू 30। तो इसको देख लेते हैं सबसे पहले। जब प्राइस 40 थी तो क्वांटिटी डिमांड 100 थी, तो रेवेन्यू कितना होगा? यहाँ पे टोटल रेवेन्यू लिख देता हूँ। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। सो 40 इंटू 100 करें तो 4000 आ जाएगा। 30 इंटू 200 करें तो 6000 आ जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू वुड इंक्रीज, तो रेवेन्यू इंक्रीज हो गया 4000 से 6000 तक इंक्रीज कर गया। तो ये आंसर हमारे लिए सही हो जाएगा। अगली जो ऑप्शन है वो ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू वुड बी मैक्सिमाइज्ड एट प्राइस 40। तो मैक्सिमाइज तो नहीं है भाई, लेकिन ऐसी इमीडिएट अगली वैल्यू पे हमारे पास रेवेन्यू इससे भी ज्यादा है, तो ये ऑप्शन डी नहीं होगा। ऑप्शन सी को हम चूज कर लेंगे। अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आप चैट में लिख दें, कमेंट्स में लिख दें। आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। Which event is most likely to enable firms to respond to an increase in demand by increasing supply rather than by raising the price? तो इसको आप क्वेश्चन को स्टॉप करें और अच्छे से इसको पढ़ें कि क्या मतलब है इसका। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब डिमांड इंक्रीज होती है
तो फर्म्स ये नहीं चाहते कि प्राइस बढ़ जाए, बट रादर वो इंक्रीज करना चाहते हैं किस चीज़ को, क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। तो ऐसा हो सकता है ऑप्शन सी के अंदर, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस बफर स्टॉक स्कीम फॉर द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। देखिए, बफर स्टॉक बेसिकली स्टोरेज हाउसेज होते हैं गवर्नमेंट के, जिसमें गवर्नमेंट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस गुड्स को स्टोर करके रख देती है। जब भी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस को बढ़ने से रोकने के लिए गवर्नमेंट बफर स्टॉक में से चीज़ें उठाती है, मार्केट में रिलीज कर देती है स्टॉक्स को, ताकि सप्लाई बढ़ जाए और ऑटोमेटिकली प्राइसेस उधर ही रहें जितनी पहले थी, या फिर एटलीस्ट इंक्रीज नहीं होती, या इवन डिक्रीज भी हो जाती है समटाइम्स। बाकी सारी ऑप्शंस जो हैं वो इसके क्वेश्चन के साथ मैच नहीं कर रही, लेकिन अगर कोई भी ऑप्शन आपको कंफ्यूज करी हो, you can write in the chat and I'll get back to you. Question number 13 is, in the diagram S1 is the supply curve and D1 is the initial demand curve. So D1 ये है, supply S1 है, और है ये किस चीज़ का, डिमांड फॉर फेस मास्क एस एक्स, ये एक्स फेस मास्क का की कंपनी का नाम है लेट्स से। A rival firm produces face mask Y, which is a close substitute। ठीक है, सो फेस मास्क दो टाइप के मास्क हैं, एक एक्स और वाई, और ये एक दूसरे के डेफिनेटली सब्सटीट्यूट्स हैं। अब यहाँ पे हमें क्लियरली ग्राफ में नजर आ रहा है कि ये जो फेस मास्क एक्स है उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो इसकी डिमांड इंक्रीज होने की रीजन क्या हो सकती है? ठीक है, सो स्टॉप द वीडियो, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन लिसन टू द लॉजिक। और अगर फिर भी समझ ना आए तो अगेन चैट ओपन है, वहां पे लिख सकते हैं आप, और कमेंट्स पे भी लिख सकते हैं। व्हाट वुड कॉज डिमांड कर्व टू शिफ्ट टू D2, यानी डिमांड इंक्रीज किस वजह से होगी, किस चीज की डिमांड इंक्रीज होगी? फेस मास्क एक्स एक्स की डिमांड क्यों इंक्रीज होगी? डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, अगर फेस मास्क एक्स का कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कम होता है तो इसकी सप्लाई बढ़नी चाहिए थी, सप्लाई में तो कोई चेंज नहीं है, सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ फेस मास्क वाई, तो उसका भी uh, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उससे भी वाई की सप्लाई बढ़ेगी, और वाई की अगर सप्लाई बढ़ती तो वाई सस्ता हो जाता, तो एक्स की डिमांड लोगों को कम करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे तो ज्यादा करें। एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फेस मास्क एक्स एक्स, अगर इंक्रीज इन प्राइस होता तो मूवमेंट अलोंग द कर्व होती, शिफ्ट ना होती। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फेस मास्क वाई, फेस मास्क वाई अगर एक्सपेंसिव हो जाएगा तो उसके सब्सटीट्यूट एक्स की तरफ लोग आएंगे, एक्स की डिमांड बढ़ जाएगी, सो डिमांड कर्व इसके राइट पे शिफ्ट हो जाएगा, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जैसे कोक एंड पेप्सी, कोक महंगी हो तो पेप्सी लोग ज्यादा खरीद लेते हैं। आपको मास्क लेना है, अगर वाई मास्क एक्सपेंसिव है तो एक्स ज्यादा खरीद लेंगे, ये क्योंकि ग्राफ एस एक्स का है, तो इसलिए एक्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज कर देगी। Okay, so now moving to the next question, question number 14. A government introduces charges for vehicles using the road in its capital city. Which characteristic must the road have for this to be successful in reducing congestion? जी, सो कंजेशन अगर काम करना चाहती है गवर्नमेंट सिटी सेंटर्स के अंदर, कैपिटल सिटी के अंदर, तो क्या करना चाहिए? तो कौन सी चीजें होनी चाहिए जिसकी वजह से ऐसे करने से सक्सेसफुल होगी गवर्नमेंट? ऑप्शन ए, द रोड मस्ट बी एक्सक्लूडेबल, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को एक्सक्लूड कर सकते हैं रोड के यूज से, तभी आप इसकी डिमांड को भी कम कर सकते हैं, चार्ज लगा के, लाइक लोग फिर वहां पे जो चार्ज नहीं पे करेंगे वो नहीं आ सकेंगे। सही, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस पढ़ लें, कोई कंफ्यूज करे तो यू कैन राइट इन द कमेंट, so I'll get back. Question number 15 says the table shows the tax on individual uh, tax an individual would pay at different levels of incomes. जी, आपके पास डिफरेंट इनकम लेवल्स दिए हुए हैं और टैक्स की अमाउंट दी हुई है। ये एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम है हमारे पास, और यहाँ पे टैक्स पेड है। व्हाट इज द एवरेज टैक्स रेट and the marginal taxation rate of taxation for an individual with an annual income of 50,000? देखिए, जब इनकम आपकी 50,000 है तो आपका एवरेज टैक्स रेट क्या होगा? एवरेज टैक्स रेट का फॉर्मूला होता है, एवरेज टैक्स रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ टैक्स डिवाइडेड बाय इनकम मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सो वाई मैं यहाँ इनकम के लिए यूज कर रहा हूँ टी एस टैक्स, तो 50,000 पे टैक्स कितना पे करें? 8,000, तो ये 8,000 इधर आ जाएगा, और इनकम कितनी है? 50,000 है, तो 50,000 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, दो जीरोस इसके साथ कैंसिल कर दें, इसकी दो इसके साथ कैंसिल कर दें,
5 ones are 5 and 5 ones are 5 और 5 6 are 6 are 30 तो 16% हो गया. So average tax rate हमारे पास कितना होगा? Average tax rate will be 16%. So हम थोड़ा सा नीचे अगर जाते हैं यहाँ पे तो ऑप्शन बी में हमें नजर आ रहे हैं. ऑप्शन बी में एवरेज टैक्स रेट जो 16%, ऑप्शन बी और सी में नजर आ रहा है. तो ए को हम क्रॉस कर देते हैं, डी को भी क्रॉस कर देते हैं, इस तरह थोड़ा शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा. आगे वो कहते हैं मार्जिनल टैक्स रेट कितना होगा. देखिए मार्जिनल टैक्स रेट होता है एडिशनल इनकम पे जो हम एडिशनल टैक्स पे करते हैं. सो 50,000 पे जब आपको देखना है तो फिर 40,000 से 50,000 तक चेंज इन इनकम को देखेंगे. सही है. तो ये हमारे पास जो वाई एक्सिस पे शो हो रहा है ये हमारे पास चेंज इन इनकम है. ये हमारे पास इनकम है. तो 40 से 50,000 तक हम चेंज इन इनकम देख लेंगे. कितना है चेंज इन इनकम? चेंज इन इनकम इज 10,000. तो यहाँ पे मैं 10,000 लिख देता हूँ. और चेंज इन टैक्स पेड कितना है? आपके पास 2,000 है. 6,000 से लेके 8,000 तक 2,000 का चेंज है. सो अब आप क्या करेंगे? आप मार्जिनल टैक्स रेट के लिए लिखेंगे चेंज इन टैक्स रेट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम मल्टीप्लाई बाय 100. सो ये मार्जिनल टैक्स रेट का फॉर्मूला है, ये याद होना चाहिए आपको. तो टैक्स का चेंज कितना है? 6,000 से 8,000 तक 2,000 का चेंज है. इनकम का कितना चेंज है? 40 से 50,000 तक 10,000 का चेंज है. मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें. ये 3 जीरो इससे कैंसिल कर दें, ये जीरो इससे कर दें, 10 इंटू 2 करें तो 20% आ जाएगा. सो मार्जिनल टैक्स रेट इज 20%. तो ऑप्शन बी आ जाएगा 20%. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Moving to the next question, or the next question is question number 16. A government has increased output with no effect on price level. ठीक है. सो आउटपुट इंक्रीज करना चाहिए लेकिन प्राइस पे कोई इम्पैक्ट ना है. What must have been the initial level of aggregate demand? ठीक है. सो एग्रीगेट डिमांड AD1 होना चाहिए इनिशियल, क्योंकि AD1 से AD2 तक जब डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस लेवल में कोई चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि AD1 पे इक्विलिब्रियम यहाँ पे E पे बनेगा या E1 कह लें, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी होगी? P होगी. लेकिन अगर एग्रीगेट डिमांड AD1 से AD2 तक बढ़े तो इक्विलिब्रियम E2 पे आ जाएगा. लेकिन प्राइस देखेंगे तो एग्जैक्टली वही है जो पहले थी. बाकी केसेस में प्राइस फिर आप देख रहे हैं बढ़ती जा रही है, तो ये हम नहीं चूज कर सकते. इनिशियल हमारे पास एग्रीगेट डिमांड AD1 होना चाहिए, तो AD1 से AD2 तक बढ़ेंगे तो प्राइस इंक्रीज नहीं होगी. सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम में हम ट्रांसफर पेमेंट्स को ऐड नहीं करते. सो बेनिफिट्स पेड टू अनएम्प्लॉयड, ये इसका नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता. ये ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं, बेसिकली पेमेंट्स मेड विदाउट गेटिंग एनी गुड और सर्विस आर बेसिकली ट्रांसफर पेमेंट्स. ये नेशनल इनकम के अंदर हम ऐड नहीं करते. Question number 18 is four students have to fill the gaps in the sentence shown. ये four students are 1 to A, B, C, D, चार students हैं. A person is defined as unemployed if they are able, willing and available to work. ठीक है. So हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन, इनको मैं थोड़ा सा पहले क्लियर कर दूं. ऑप्शन सी और डी में से कुछ हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन 1 में वो ये कह रहे हैं, ये डेफिनेशन का पार्ट है कि एबल, अवेलेबल एंड विलिंग टू वर्क एट करंट वेज रेट. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डी में यहाँ पे करंट रेट करे, अबव द करंट रेट नहीं होता. बेसिक डेफिनेशन है बेसिकली इसकी, अनएम्प्लॉयड. Okay, so question number 19 is which statement best describes the consumer's price index? Consumer price index basically price changes को show करता है. It is a measure of average change in prices of basket of goods and services over time. So C is the correct answer. ये भी इसकी definition है, ये आपको ज़हन में रखनी होगी. Question number 20 says the diagram shows the production possibility curves for country X and Y. The only two countries in the world, both countries produce just two goods, M and N. Okay, so under which terms of trade will both countries benefit from trading with each other? ठीक है. So
इसके लिए बेसिकली हमें इनकी रेशियोज निकालनी होती कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, फिर अकॉर्डिंगली हम उनको डिसाइड कर लेते हैं। दो कंट्रीज हैं, कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई, दो प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी, एम एन एन, ये दो प्रोडक्ट्स हैं। कंट्री एक्स को अगर हम देखें तो ये कंट्री एक्स का पीपीसी है। कंट्री एक्स एम भी 100 बना सकते हैं, एन भी 100 बना सकते हैं। तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशो कितनी है, 1:1 है, यानी 1 M/1 N। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। इसके लिए कितनी है, y के लिए 200 y बना सकते हैं क्वांटिटी ऑफ m, और y कंट्री 150 बना सकते हैं प्रोडक्ट n। ठीक है, सो ये तरह पुट कर दें। अब इसकी भी इसी तरह रेशो निकाल लें। 1 कितना हो जाएगा, 0.75 n, यानी इसको क्या करा, 200 को 1 करने के लिए 200/200 करना होगा, 150/200 करना होगा। सही है, तो 200/200 इज 1, 150/200 इज इक्वल टू 0.75। अब तरीकाकार ये होता है कि m तो 1 है हर जगह पे, ऑप्शंस में भी अगर नीचे तो m 1 1 1 1 हर जगह पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने भी 1 कर दिए जान के, क्योंकि इधर ऑप्शंस में ये 1 था, तो इसीलिए 1 को m को ही 1 में कन्वर्ट किया। अब क्या इनके दरमियान में एक्सचेंज रेट होना चाहिए, देखिए एक्सचेंज रेट होता है इन दो फिगर्स के बीच में। ठीक है, m तो 1 रहेगा, n इन दो के बीच में आना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, 7.75 से बड़ा होना चाहिए। तो पहली ऑप्शन है 1 for 0.75 n, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे मैंने बताया इस पे भी नहीं हो सकता, 1 पे भी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन क्रॉस कर दें। 1 for 1 ये भी नहीं हो सकता, जैसे ये 1 आ रहा है, तो ये भी कैंसिल कर दें। 1 to 2 तो ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि 2 तो कोई बना ही नहीं रहा, तो कैसे किसी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। सो ये आ जाएगा 1 M/0.8 n, क्योंकि ये 1 और 0.75 के बीच में आ रहे हैं। लेकिन इसकी लॉजिक क्या है, इसकी लॉजिक ये है कि जब सपोज करें कि कंट्री वाई 0.75 क्वांटिटी एन की खुद बना सकता है, तो ये सारी की सारी तो नहीं दे देगा दूसरी कंट्री को। और अगर कंट्री एक्स 1 खुद बना सकता है 1 क्वांटिटी एन की, और वाई उसे 1 क्वांटिटी ऑफर करे, तो वो भी उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो यानी ये दोनों वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं होती दोनों कंट्रीज के लिए। तो इसलिए इन वैल्यूज पे तो एक्सचेंज रेट सेट नहीं होगा, जितनी वो खुद बना सकते हैं उतने पे वो क्यों ट्रेड करेंगे, उनको जब ज्यादा मिलेगा तब वो करेंगे। जब आप, या फिर आप देने वाले हैं तो आपको कम देना चाहिए, देना पड़े, तब आप ट्रेड करेंगे। अगर आप लेने वाले हैं तो आपको ज्यादा मिलना चाहिए। सर 0.75 अगर एक कंट्री यानी कंट्री वह खुद बना सकता है, तो वो ये 0.75 एक्सेप्ट नहीं करेगा एक्स से, ये डिमांड करेगा जी जितना मैं खुद बना सकता था उससे मुझे ज्यादा मिलेगा, तब मैं ट्रेड करूंगा। और कंट्री एक्स जो है, अगर वो खुद 1 यूनिट बना सकता था एन का, तो वो ये भी नहीं चाहेगा कि सारा का सारा कंट्री वाई को दे दें, वो इसके बीच में ही देगा। सो 1 और 0.7 के बीच, 75 के बीच में कुछ सेट होगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, why is increased government provision of education most likely to shift aggregate demand curve to the right। देखिए एजुकेशन पे जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट खर्च कर रही है, डिमांड साइड पॉलिसी के तौर पे अगर इसको हम देखें, तो इसके लिए क्या होगा, मोर स्कूल्स विल बी बिल्ड। तो गवर्नमेंट जब ज़्यादा स्कूल्स बनाएंगे तो उससे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी। एग्रीगेट डिमांड का मैजिकल फॉर्मूला होता है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I+G प्लस X-M। ये मैजिकल फॉर्मूला आप जहन में रख लें। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी, ये मैंने जी लिखा है, ये बढ़ेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। बाकी सारी चीज़ों से एग्रीगेट डिमांड या तो कम हो रही होगी, या एग्रीगेट डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Question number 22 says which item is not included in current account of country's balance payment। देखिए करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आता है, बिल्कुल आता है। इंटरेस्ट ऑन फॉरेन लोन्स ये भी आता है, इनकम फ्लोज का पार्ट होता है। प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी आता है, ये भी इनकम फ्लोज का पार्ट होता है, प्राइमरी इनकम्स होती हैं। परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स ये नहीं आता, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट का है। वैसे तो कैपिटल अकाउंट आपका एएस में सिलेबस में नहीं है, इसलिए एग्जामिनर को वैसे अवॉइड करना चाहिए था ये ऑप्शन देने के लिए, लेकिन चलें उसने दे दिया। तो ये तीन चीज़ें जो कि हमें पता है ये करंट अकाउंट में होती हैं, तो ये एक चौथी चीज़ है जो करंट अकाउंट में नहीं होगी। एग्जामिनर सिंह की कौन सी चीज़ नहीं होगी करंट अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 23 सेज के
Under which conditions will nominal GDP and real GDP increase at the same time? नॉमिनल जीडीपी होते हैं मॉनेटरी जीडीपी आपका, और रियल जीडीपी होते हैं जीडीपी आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन। सो इसके लिए ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आंसर होगा कि रेट ऑफ चेंज इन नेशनल आउटपुट आपका बढ़ना चाहिए, जीडीपी आपका नॉमिनल जीडीपी बढ़ जाएगा उससे। सो ऑप्शन सी और डी में से कुछ हो सकता था, इसमें तो इंक्रीज ही नहीं हो रहा था। और आगे देखें रेट ऑफ चेंज इन जनरल प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल में अगर कोई चेंज ना हो तो रियल जीडीपी बढ़ जाएगा, लेकिन डी में अगर देखें जितनी इनकम बढ़ी है उतना ही प्राइसेस बढ़ गए तो आपका रियल जीडीपी उतना ही रहेगा। सो इसलिए डी को हम चूज नहीं कर सकते क्योंकि एग्जामिनर रिक्वायर करे किसकी वजह से रियल जीडीपी इंक्रीज करेगा, तो सी ऑप्शन की वजह से इंक्रीज कर देगा, क्योंकि इसमें आपकी इनकम भी बढ़ रही है यानी जीडीपी बढ़ रहा है, साथ में प्राइसेस में चेंज नहीं आ रहा तो प्राइसेस उतनी ही है। सो इट मीन्स कि आप अब ज़्यादा इनकम है और आपको पे कम करना पड़ रहा है तो रियल इनकम आपकी बढ़ जाएगी। Question number 24 says general equilibrium in macroeconomy is achieved when total injections are equal to the leakages. What is most likely to cause disequilibrium in the economy in the short run? देखिए disequilibrium के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, equilibrium के लिए condition होती है कि saving plus tax plus imports must be equal to investment plus government expenditure plus exports, जिन्हें हम leakages and injections भी कहते हैं। ये हमारे पास लीकेजेस हैं और ये हमारे पास इंजेक्शन है। सो लीकेजेस और इंजेक्शन इक्वल हो जाए तो ये इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम होती है। अगर अगर ये इक्वालिटी डिस्टोर्ट होगी तो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। अभी हम थोड़ा सा अज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास इनिशियली सेविंग भी 30 थी, टैक्सेस भी 30 थे, और हमारे पास इम्पोर्ट्स भी 30 थी, और इन्वेस्टमेंट भी 30 थी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी 30 थे, और एक्सपोर्ट्स भी 30 थे। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 90 इक्वल्स 90। तो इक्विलिब्रियम हमारे पास ऑलरेडी था। अब यहाँ पे ये जो चेंजेस दी हुई हैं इनमें से कौन सी चीज़ है जो इस इक्विलिब्रियम को डिस्टोर्ट कर देगी, यानी दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं रहेंगे? सही, तो मैं इसमें थोड़ा सा अज्यूम कर लेता हूँ फिर से वैल्यूज को। ऑप्शन, इसके लिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, वैसे बाकी ऑप्शन भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करे बाय 30 तो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी 30 थी, इसको ये 60 हो जाए, 30 और ऐड हो जाए तो ये फिर क्या हो जाएगा? 60 प्लस 30 प्लस 30 60 ये हो जाएगा, इज इक्वल टू 120, इस साइड पे आ जाएगा। उसके बाद है डिक्रीज इन हाउस होल्ड सेविंग्स। हाउस होल्ड सेविंग पहले 30 की थी, 30 से डिक्रीज हो जाए तो ये फिर जीरो हो जाएंगी, 30 30 प्लस 30 रह जाएगा, 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60। सो 60 इक्वल टू 120, ये इक्विलिब्रियम डिस्टोर्ट हो गया बिकॉज 60 इज नॉट इक्वल टू 120। सो ऑप्शन बी आंसर होगा। बाकी केसेस में आंसर जो है वो आपका डिस्टोर्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम। आप इसी तरह से वैल्यूज इसमें पुट करके देख सकते हैं। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट में लिख के। And then the next question is, what would be the most likely reason for a decrease in frictional unemployment? Frictional unemployment होती है कि जब आप एक जॉब छोड़ते हैं दूसरी जॉब सर्च के लिए कर रहे होते हैं, फॉर द टाइमिंग होती है। और इसके लिए मसला ये होता है कई दफ़ा लोगों के पास नॉलेज नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि कहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं। तो इसको कम करने के लिए मोर इन्फॉर्मेशन ऑन लेबर मार्केट वैकेंसीज, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट होगी, तो एज अ रिजल्ट आपके पास फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। Question number 26 says a Kenyan banker who lives and works in India sends 15% of their wages back to Kenya every month. ठीक है, एक केनियन है जो इंडिया में काम करता है, 15% अपनी इनकम का वो वापस कीनिया भेज देता है रेमिटेंसेस की फॉर्म में। व्हाट वुड बी द चेंज इन करंट अकाउंट कंपोनेंट्स ऑफ ईदर कंट्री? देखिए अ फॉल इन सेकेंडरी इनकम फॉर इंडिया ये हो जाएगा। सेकेंडरी इनकम बेसिकली होती है जैसे रेमिटेंसेस सेकेंडरी इनकम का पार्ट है। सेकेंडरी इनकम प्राइमरी इनकम क्या होती है इनके बारे में अगर कंफ्यूजन हो तो आप मेरे चैनल पे चले जाएं, वहाँ पे सर्च कर लें, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनकम की एक बड़ी ज़बरदस्त इफेक्टिव वीडियो बनाई है। मैं इसमें कमेंट्स में भी लिख दूंगा, फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक, अगर आप वहाँ से एक दफ़ा देख लें। ठीक है, तो यहाँ से इंडिया से चूंकि पैसे जा रहे हैं तो इंडिया में सेकेंडरी इनकम कम हो जाएगी। सेकेंडरी इनकम इनकम इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों हम ले रहे होते हैं, इंडिया से जा रहे हैं तो फिर लाइक आउटफ्लो बढ़ जाएगा, इनफ्लो कम होगा। क्वेश्चन 27,
says over a period of a year the annual rate of inflation became negative. Negative का मतलब होता है कि आपका प्राइस लेवल पहले से नीचे चला गया, कम हो गया. Which statement is correct? The cost of living has fallen. So ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा. जब इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव होता है, चीजें सस्ती होती है, डिफ्लेशन होता है, प्राइसेस कम होती है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो जाती है, चीजें आपको सस्ती मिल रही है. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. मैं टाइम सेव करने के लिए सही ऑप्शन को डिस्कस कर रहा हूँ. बाकी ऑप्शंस अगर कंफ्यूज करें तो पूछ लीजिएगा चैट में. द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री प्लान्स टू रेज इनकम टैक्स रेट. द इनिशियल इक्विलिब्रियम फॉर कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट एक्स. इनिशियली हमारे पास ये था. इसका मतलब है एग्रीगेट सप्लाई फिर कौन सी होगी, ए एस वन होगी. एग्रीगेट डिमांड कौन सी होगी, ये वाली ए डी वन होगी. ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट डी पे मीट करें तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है. Then examiner says which new equilibrium point would economists. अच्छा, यहाँ पे हुआ क्या है, गवर्नमेंट ने रेज किया इनकम टैक्स रेट. इनकम टैक्स बेसिकली डिमांड फैक्टर होता है. इससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, ए डी वन से ए डी टू की तरफ आ जाएगी. सो इट मीन नया डिमांड कर्व हमारे पास ये हो जाएगा ए डी कर्व. तो इक्विलिब्रियम फिर कहाँ पे आ जाएगा, डी पे आ जाएगा. यहाँ पे कोई सप्लाई का फैक्टर मेंशन नहीं है, तो इसकी एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट नहीं होगी, सिर्फ डिमांड शिफ्ट होगी. Question number 29 is which combination would represent the most expansionary set of monetary policy? Expansionary policy होती है जैसे एग्रीगेट डिमांड आपकी बढ़ जाती है, ठीक है. और इसकी क्या होता है, लाइक क्रेडिट रेगुलेशंस आपको डिक्रीज करना पड़ती हैं, ठीक है. क्रेडिट रेगुलेशंस या क्रेडिट अवेलेबिलिटीज आपको बढ़ाना पड़ेंगी क्रेडिट रेगुलेशन को इजी करके. और इंटरेस्ट रेट के साथ क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट रेट आपको कम करना चाहिए और मनी सप्लाई बढ़ाना चाहिए. तो ऐसा करेंगे तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन आएगी. क्रेडिट रेगुलेशन, अच्छा इसके लिए ऑप्शन फिर क्या होगा कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी आपके पास इंक्रीज होनी चाहिए, ऑप्शन बी. और इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होना चाहिए, डाउन. और मनी सप्लाई इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज. ठीक है बेटा. सो अगर कोई इसमें अंडरस्टैंडिंग का इशू हो तो आप फिर पूछ लीजिएगा. क्रेडिट अवेलेबिलिटी ज़्यादा होने से इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, कंज्यूमर ज़्यादा कंज्यूम करेगा. इंटरेस्ट रेट कम होने से भी लोग लोन लेने में कंफर्टेबल होते हैं. और मनी सप्लाई बढ़ने से मनी सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है. लास्ट क्वेश्चन है कि एन इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग एक्सिलरेटिंग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. Which group is likely to be least concerned by this? देखिए, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है ना, अगर किसी को नुकसान नहीं होता तो वो बोरोवर्स होते हैं, ठीक है. सो बोरोवर्स ने, क्योंकि जब बोरोवर्स ने पैसा लोन के तौर पे लिया था तो तब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या कोई भी इन्फ्लेशन नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हीं पैसों की ज़्यादा परचेजिंग पावर थी. जैसे अगर 100,000 रुपीज़ जो है वो मैंने अगर लोन लिया था लास्ट ईयर, लेट्स से जब इन्फ्लेशन नहीं थी इतनी, वो 100,000 जब मैं एक साल के बाद रिटर्न करूंगा तो मुझे तो फायदा हो जाएगा, बिकॉज मैंने हाई पावर्ड मनी खरीदा था जिसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा थी. और जब मैं रीपे कर रहा हूँ तो उसकी परचेजिंग पावर कम है. आई परचेज्ड, यानी आई गॉट लोन ऑफ 100,000 with high purchasing power and I'm paying it back with lesser purchasing power. बाकी लोगों को फायदा नहीं होगा, बाकी लोगों के लिए इसलिए बोरोवर्स कंसर्न नहीं होते, बाकी लोगों को कंसर्न होता है. क्रेडिटर्स वो होते हैं जो लोन दे रहे हैं. लेंडर को तो नुकसान होगा ना, कि जब उसने पैसा दिया था, पैसे की वैल्यू ज़्यादा थी, इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू कम है, तो उसने हाई पावर्ड मनी दिया था, लो पावर्ड मनी उसको वापस मिल रहा है. ओके. सो उसके बाद आप मेरा नंबर नोट कर लें, 0+923333442967 और ऑनलाइन क्लासेस अगर मेरी आप ज्वाइन करना चाहें तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरी बुक्स का जो भी स्टडी मटेरियल मैंने प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए, तमाम पेपर्स के लिए, पेपर 1, 2, 3 और कॉम्प्रिहेंसिव के नाम से पूरे नोट्स भी अवेलेबल हैं. अगर वो आपको रिक्वायर्ड हो तो आप कमेंट्स में जाके देखें, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा. सो यू कैन ऑर्डर ऑनलाइन देयर एंड सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो सून. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.